You can always count on a murder for a fancy prose style. Good evening, friends. This is Sachin, and today we are going to discuss Lolita, or the Confessions of a White Widowed Male, which has been written by Vladimir Nabokov, a Russian American writer. Humbert Humbert, a European intellectual adrift in America, is a middle-aged college professor. Haunted by the memories of a lost adolescent love, he falls outrageously and eventually illegally in lust with his landlady's 12-year-old daughter, Dolores Hayes. Obsessed, he will do anything, will commit any crime to possess his Lolita. But once Lolita belongs to Humbert, once he has got what he wants, what next? And what of Lolita? How long is she willing to be possessed? In this video, we are going to answer all these questions, and we are going to review, analyze and summarize this novel at once. So friends, let us start the video. We get to know in the foreword of the novel, which has been written by John Ray Jr. PhD, and in this we get to know that it was the real manuscript of Humbert Humbert. The real writer of this novel is Humbert Humbert, who wrote this novel while he was in jail. He was suffering from psychological issues, and before his trial he died, and he had mentioned that the publisher can publish it after his death. So we get to know in the foreword of the novel that this is not written by the real writer of the novel is Humbert Humbert, and the writer of the novel makes some necessary changes in the novel, and the characters who are in this novel are real life characters, though they have different names, but they were based on real life characters, and only one name is not changed in this novel, and that is Dolores Hayes, Lolita. That is the real name. Otherwise all other names are changed. The writer Humbert Humbert has changed all these names. Humbert Humbert is also a fictional character. Humbert Humbert is also a fictional character or fictional name. It is not the real name of the writer. जब नोवेल की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि हम्बर्ट हम्बर्ट साइकोलॉजिकली वीक है और एक कॉलेज प्रोफेसर है। ये कॉलेज प्रोफेसर है यूरोप में, और इसके बचपन के बारे में जब हमें पता चलता है तो हमें पता चलता है कि जब ये 13 साल का था, when he was 13 years old, he fell in love with a girl whose name was Annabelle Lee, and he fell in love with her. She was 12 years old, he was 13 years old, they both fell in love, and after 4 months of their meeting, Annabelle Lee died. वो मर जाती है 4 महीने के बाद। जब वो मिले होते हैं, उनको मिले हुए 4 महीने होते हैं, उनका जो प्यार है पूरी तरह से भी कारवां भी नहीं चढ़ा था, है ना। उनके प्यार को ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसकी डेथ हो जाती है एनाबेल ली की, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और इसका उसके साइकोलॉजिकल दिमाग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है वो, है ना, जिसकी वजह से उसको बाद में, जब वो हालांकि अच्छी मेहनत करता है, पढ़ता है, वो बाद में कॉलेज प्रोफेसर बन जाता है इंग्लिश का, लेकिन ड्यू टू हिज साइकोलॉजिकल इश्यूज ही हैड टू मूव ऑन फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। काफी सारे वर्क ये चेंज करता है विद द कोर्स ऑफ द टाइम, ड्यू टू जस्ट द मेमोरीज ऑफ his girlfriend Annabelle Lee। Annabelle Lee की वजह से इसे बहुत सफर करना पड़ता है, और बाद में क्या होता है, ये अमेरिका शिफ्ट कर जाता है। हम्बर्ट हम्बर्ट हमारा जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, अमेरिका शिफ्ट कर जाता है। वहां पे ये रहता है, जो इसकी लैंडलॉर्ड है उसका नाम है शार्लोट हेज। शार्लोट हेज के साथ ये रहता है। मोटी सी लड़की नहीं, मिडिल एज वुमन है एक्चुअली, और बहुत ही मतलब इस पे वो उसको पसंद करती है। हम्बर्ट को वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। खुद दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोर्स टाइप लेडी है, लेकिन हम्बर्ट एक्चुअली हैंडसम है तो इसे पसंद आ जाता है हम्बर्ट। और ये हम्बर्ट के ऊपर हरदम चढ़ी रहती है, मतलब उस पे पूरी नजर रखती है ये हम्बर्ट पे। और लेकिन हम्बर्ट वहां पे क्यों रह रहा है, क्योंकि हम्बर्ट को जो उसकी लेडी है ना, जिसका नाम है डोलोरेस हेज बहुत पसंद आ जाती है। इससे पहले भी हम्बर्ट के रिलेशनशिप में रहा था, लेकिन उसे कोई भी वैसी लड़की नहीं मिली थी जो उसकी गर्लफ्रेंड अनाबेल ली के जैसी हो। अनाबेल ली की जैसी कोई भी लड़की नहीं थी, तो लगातार उसके रिलेशनशिप टूटते रहे थे यूरोप में। हालांकि उसने एक मिडिल एज वुमन से शादी भी की थी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, बिकॉज memories of his girlfriend continuously were disturbing him. That's why he could not have any static relationship. But now he found this girl known as Dolores Hayes,
or Lolita, and he found that she has all these qualities of his गर्लफ्रेंड। वो उसकी गर्लफ्रेंड की जैसी ही लगती थी उसको। इससे पहले भी उसको यंग लड़कियां बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो अभी भी उसके दिमाग में बैठी हुई यंग एनाबेल ना, उसकी वजह से उसको 12-13 साल की 14 साल की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। उन्हें ये निम्फिट्स कह के बुलाता है, निम्फिट्स कह के। और डोलोरेस हेज को या ललिता को भी ये निम्फिट्स कह के ही बुलाता है। तो इसे वो पसंद आ जाती है। और बाद में क्या होता है कि डोलोरेस हेज को जाना पड़ता है समर कैंप पे। समर कैंप पे भेज देती है इसकी माँ उसको, शार्लोट हेज है जो, वो उसको समर कैंप पे भेज देती है स्कूल के। शार्लोट हेज अपनी बेटी को ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और शार्लोट खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पसंद नहीं करती है अपनी बेटी को। उसका ऐसे बड़ों के साथ घुल मिल जाना, हम्बर्ट के साथ जैसे वो घुल मिल जाती थी, बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे ट्रीट करती थी हम्बर्ट को जैसे कि वो उसका फ्रेंड है ना। एक्चुअली वो उम्र में काफी बड़ा था उससे, तो ये चीजें ज्यादा पसंद नहीं है उसकी माँ को, शार्लोट हेज को। और इसी रिगार्डिंग वो उसे समर कैंप पे भेज देती है। और जब वो समर कैंप में होती है तो हम्बर्ट उससे शादी कर लेता है शार्लोट हेज से, क्योंकि उससे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है डोलोरेस हेज के पास, डॉली के पास रहने का। ये एकमात्र तरीका है कि उससे शादी कर लो उसकी माँ से, और फिर वो उसका स्टेप फादर बन जाएगा, तो लीगली वो उसके साथ रह सकता है। और जब शादी करने के बाद वो कॉन्स्टेंटली तरीके ढूंढता रहता है किस तरीके से वो डोली को शार्लोट को मार दे और इल्जाम भी उसके ऊपर ना आए, है ना। और साथ साथ में एक जर्नल लिखता रहता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखता रहता है, जिसमें वो कन्फेस करता है कि वो डोली से प्यार करता था। ही वॉज इन लव विद, मैडली इन लव विद डोली, डोलोरेस हेज और लोलिता। और ये एक दिन शार्लोट को मिल जाती है, वो सफाई कर रही होती है उसके कमरे की, और उसको वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है। और जब उसे पता चलता है कि उसने शादी इसीलिए की है उससे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता बल्कि उसकी बेटी को पसंद करता है, डोली को पसंद करता है, तो ये बात से बिल्कुल भी जरी नहीं जाती है। वो उस पर बहुत एनरेज करती है, गुस्सा करती है उस पर, और गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, और भागती हुई बाहर पे चली जाती है। और बाहर उसका तेज शिकार आ रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे, और उसकी डेथ हो जाती है। वो मारना चाहता था हम्बर्ट उसको, मर गई। उसका तो प्लान अपने आप खुदा भी उसका साथ दे रहा था इस चीज के लिए, है ना। तो वो डेथ हो जाती है। उसके बाद समर कैंप जहाँ पे उसका हो रहा था वहां पे एज ए स्टेप फादर जाता है उसका हम्बर्ट जाता है डोली को लेने, और एज ए स्टेप फादर उसको वहां से ले जाता है और निकाल के ले जाता है। उसके बाद ये डोली को घुमाना शुरू कर देता है। वहां से ये आते हैं एक होटल में, और वहां पे ये कहता है कि एक्चुअली मैंने सेड्यूस नहीं किया था डोली को, एक्चुअली शी सेड्यूस्ड मी। ये एक्सेप्ट करता है वो, मैन्युस्क्रिप्ट में उसने ये एक्सेप्ट किया होता है कि मैंने उससे सेड्यूस नहीं किया था, बट शी सेड्यूस्ड मी। और जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसा है भी, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, डोली ने इसको सेड्यूस किया है। तो उसमें क्या था कि अभी क्लियर नहीं है, ये राइटर ने क्लियर नहीं किया है कि ये मतलब एक्चुअली सच था या नहीं था, है ना। जब हम अपने बारे में लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम खुद को छुपाने की या खुद को इनोसेंट शो करने की कोशिश करते हैं। जो डायरी लिखते होंगे वो जान रहे होंगे, अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो जरूर कोशिश करते हैं खुद को अच्छा शो करने की, इनोसेंट शो करने की, है ना। लेकिन ये तो राइटर ही जानता है कि क्या सच था, किसने एक्चुअली किसको सेड्यूस्ड किया था, है ना। और 1 साल तक उनका रिलेशनशिप चलता है, एक होटल से दूसरे होटल तक वो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। कंटिन्यूसली दे आर सेड्यूसिंग ईच अदर, दे आर हैविंग a kind of illicit relationship with each other, है ना। और एक बार वो डोली पूछती भी है बाद में, 1-2 होटल में घूमने के बाद उससे पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, तो बोलता है तुम्हारी माँ की तो डेथ हो गई है। और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, बोलती मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बोलता है अगर तुम ऐसे करोगी, अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद मी, आई एम गोइंग टू सेंड यू एन ऑर्फनेज भी भेज दूंगा, अगर बोलता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहोगी। तो मानना पड़ता है उसे, अभी क्या कर सकते हैं। थोड़े दिन तो वो करती है, एंजॉय कर रही है उस चीज को, है ना, क्योंकि यंग है उसे पता नहीं है। लेकिन बाद में शी स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट की साइड जाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वीट्सले में कॉलेज प्रोफेसर लग जाता है एक बार फिर से, हम्बर्ट कॉलेज प्रोफेसर लग जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ वीट्सले में। ओके, वहां पे ये स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल में जब ये यंग दोस्तों से मिलती है ना, अपने एक लड़की के साथ इसकी दोस्ती भी हो जाती है। और ये हालांकि हम्बर्ट उसको स्ट्रिक्ट रहता है उसके ऊपर कि तुम लड़कों के साथ नहीं मिलोगी, लड़कियों के साथ रहोगी, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ज्यादा घुलोगी मिलोगी नहीं।
लेकिन ऑब्वियसली वो यंग है, उसे ये चीजें पसंद आ रही हैं तो वो घूमना पसंद करती है। एक प्ले में पार्ट रहती है वो, उस प्ले का जो प्ले राइट था वो एंड में बहुत ही एक अच्छा मतलब एक बढ़िया रोल प्ले करेगा वो, एंड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो, जो उस प्ले का प्ले राइट था। तो वहां से वो प्ले में ये हम्बर्ट उसको देता है प्ले में पार्ट लेने का, क्योंकि वो सैड रहती है। और ये वहां में क्या होता है, ज्यादा जब घुलने मिलने लगती है और इसके साथ उसका बिहेवियर चेंज होता रह जाता है, अभी हम्बर्ट के साथ उस लड़की का, डोलोरेस का। इसीलिए वो उसे कहता है कि चलो एक बार फिर हम एक और ट्रिप पे चलते हैं, एक बार फिर ये रोड ट्रिप पे चलते हैं। और वहां पे हम्बर्ट को लगता है कि कोई कंटिन्यूसली उसका पीछा कर रहा है, और एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है। डॉली को ऐसा नहीं लगता है, वो उस पर ब्लेम करता है उसको कि तुमने किसी को मेरे पीछे लगाया हुआ होता है। फिर क्या होता है, डॉली बीमार हो जाती है, एक दिन बहुत बीमार हो जाती है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल को ये डेली रेगुलर बेसिस पे चेक करने जाता था डॉली को। एक दिन क्या होता है, हम्बर्ट भी बीमार हो जाता है, वो जा नहीं पाता। और उस दिन जब उसके अगले दिन जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉली को उसका कोई अंकल उठा के ले गया है, अंकल ले गया उसको। और ये पहले तो बहुत गुस्सा करता है उस पर पागलों की तरह, बाद में अपने आप को शांत कर लेता है। अभी क्या कर सकता है, डॉली तो निकल गई, भाग गई वो। 2 साल तक ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है। रीटा है एक लड़की, मिडिल एज वुमेन है, जिसके साथ अनविलिंगली ये रिलेशनशिप पे रह जाता है। अभी क्या करे, किसी के साथ तो रहना था उसको, तो रीटा के साथ रहता है 2 साल के लिए। और 2 साल बाद इससे लेटर आता है, एक डोली लेटर लिखती है इसे। डोली लेटर लिखती है कि उसने शादी कर ली है, वो प्रेग्नेंट है, और उसने एक इंजीनियर से शादी की है, वो प्रेग्नेंट है और वो गरीब है और उससे पैसों की जरूरत है। तभी जो हमारा कैरेक्टर है हम्बर्ट उससे मिलने जाता है उसके बताए हुए एड्रेस पे। और उससे वहां जाके पता चलता है कि उस प्ले का, जो मैंने बताया था ना, प्ले राइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसे पता चलता है कि प्ले राइट नहीं उसे वहां से भगाया था, वो ही उनका कंटिन्यूसली पीछा कर रहा था। और पहले लोलिता उसको पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में जब प्ले राइट ने उसको फोर्स करने की कोशिश की कि तुम चाइल्ड पोर्नोग्राफी में काम करो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए फिल्म बनाओ, तो उसने उसे मना कर दिया और उसे छोड़ के वहां से चली गई। और बाद में उसे ये मिलता है, इंजीनियर मिलता है जो गरीब था लेकिन अच्छा इंसान था, और इससे उसने शादी कर ली और अभी शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी ऑफ हिम। और पहले हम्बर्ट क्या करता है, उसे फोर्स करने की कोशिश करता है, उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीड्स करता है उससे कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, मेरे साथ रहने लगो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे, उसके बिना रह नहीं सकता था। उसने तो ये प्लान बनाया था कि जब तक 18 साल की नहीं हो जाएगी लोलिता, इसको ऐसे ही इधर उधर घुमाता रहूंगा, जब ये 18 साल की हो जाएगी तब इससे शादी कर लूंगा। ये उसने प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि उसे एनाबेल नहीं दिखती थी उसमें। लेकिन अभी उसका सारा प्लान टूट चुका था, उसने शादी ऑलरेडी कर ली थी और वो उससे प्यार भी करती थी। तो ये देखता है कि पुअर है, इनको पैसों की जरूरत है, तो $4000 दे के चला जाता है। $4000 देता है उसको, फिर वहां से चला जाता है। फिर ये उसका प्ले राइट का पता ढूंढता है, उस प्ले राइट को पूरी तरह से गोलियों से भून देता है, बहुत ज्यादा गोलियां मारता है, उसे फाइनली उसे मार देता है, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है। और जेल में वो ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट उसने जेल में लिखी थी, और उसने बोला था कि जब डोली की डेथ हो जाए, जब मेरी डेथ हो जाए, उसके बाद आप इसको पब्लिश करवा सकते हो। उसका ट्रायल होने से पहले 1952 में सितंबर में उसका ट्रायल था, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। उसका लॉयर जो था, उसका एक अच्छा फ्रेंड था जॉन रे, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया था, और उसने जॉन रे को ये मैन्युस्क्रिप्ट सेंड कर दी थी कि तुम इसके कैरेक्टर्स के नेम चेंज करके इसको पब्लिश कर सकते हो। जब जॉन रे ने एक्चुअल में रिसर्च की तो उसने पाया कि जो कैरेक्टर्स थे वो रियल लाइफ बेस्ड थे, हालांकि उनके नेम चेंज हो गए थे, काफी सारे नेम चेंज हो गए थे। एक ही नेम चेंज नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ही नेम चेंज नहीं हुआ था, वो था डोली का, डोलोरेस केस का, लोलिता का, वो नेम चेंज नहीं हुआ था, बाकी पूरा सेम था। और यहाँ पे हमारा ये नॉवल खत्म हो जाता है। पहले इसे कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये सेक्सुअली मतलब गलत चीज शो करता है कि एक मिडिल एज मैन का एक यंग गर्ल के साथ रिलेशनशिप, तो लेकिन ये उस तरीके से स्टडी नहीं है, साइकेट्रिस्ट नॉवल है। जॉन रेव ने भी बताया कि ये साइकेट्रिक स्टडी में ये बहुत बढ़िया नॉवल है, इसे अच्छे से पढ़ा जाएगा, लिटरेरी सर्कल में भी बहुत बढ़िया नॉवल है ये। और बात करें ये एक्चुअल में मोरल लेसन की बात करें तो पेरेंट्स के लिए एक मोरल लेसन है कि वो उनके जो इगोइस्टिक चाइल्ड हैं, क्योंकि डोली इगोइस्टिक थी बचपन से ही, उसे जो चाहिए था वो चाहिए ही था, तो इगोइस्टिक चाइल्ड को आप कैसे कंट्रोल करें, ये आपकी जिम्मेवारी है, वो आपके बच्चे
किस तरीके से आप उन्हें बेटर इन्वायरमेंट में, बेटर लाइफ के लिए, बेटर वर्ल्ड के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये नॉवल खत्म होता है। आई होप कि आपको मैंने स्टोरी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।